بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں آپ ذرا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی۔ 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے۔ یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا۔ ریکارڈ پہ ہے حسن کے ٹیکس کے جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں۔ نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں۔ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ خواہ سعودی عرب ہے خواہ برطانیہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، ٹیکس کے ریکارڈ پہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا ریکارڈ پہ ہے۔ یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ اب اس ویڈیو کے بعد ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے جو اس کے بعد یہ کیس سننے کے بعد جو وہاں پریس کانفرنس ہوئی، ذرا اس کو آپ دیکھیے۔ السلام علیکم انکل۔ جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا انکل، تھینک یو انکل۔ جی تھینک یو ویری مچ انکل، آپ کو بھی مبارک ہو جی، تھینک یو جی، اللہ حافظ جی۔ اب یہ ساری صورتحال ابھی تازہ صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان اور یہ جو انکشاف ہے، یہ ویڈیو یہ ذرا آپ دیکھیے اور ذرا غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ کو ذرا غور سے سنیے گا، اپنی آنکھیں اپنے کان کھول کے ذرا غور سے سنیے گا، دیکھیے۔ وہی چور، وہی ڈاکو، وہی لٹیرے، وہی قاتل، وہ انسانیت کا خون بہانے والے، ملک کا خزانہ لوٹنے والے، بددیانتی کرنے والے، جھوٹے، نااہل، ان پڑھ، آئین کا حلیہ بگاڑنے والے، قانون کو پاؤں کے نیچے پامال کرنے والے، ریاست کے خلاف جنگ کرنے والے اور عوام کے حقوق کا قتل عام کرنے والے، وہ سارے جرائم پیشہ، یہ جرائم پیشہ جیسے لوگوں کے چہرے پھر اسمبلیوں کی سیٹوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ پلٹ کر پھر بیٹھے ہوں گے، براجمان ہوں گے، اور جب وہ ٹی وی پر انٹرویو دے رہے ہوں گے تو ان کی باڈی لینگویج مذاق کر رہی ہوگی اس ملک کے میڈیا کا، عوام کا، غریبوں کا، کسانوں کا، مزدوروں کا، حق اور انصاف اور قانون اور آئین کی بات کرنے والوں کا، امانت، دیانت اور صداقت کی بات کرنے والوں کا ان کی تضحیق کر رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے زبان حال سے کہ دیکھو پلٹ کے ہم ہی لوگ تھے نا، ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ملک وہ بیان کر رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے بنا تھا، ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم ہی قابض ہیں، اور یہ 20 کروڑ عوام کا ملک نہیں ہے، ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ اب ہم آئین میں سے جو چاہیں نکال دیں۔ آپ کے اس شخص سے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ، ماضی کا ایک ایک لفظ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات کر رہے تھے۔ اب پاکستان کا جو یہ عدالتی نظام ہے، مجھے ایسے لگتا ہے قانون وہ مکڑی کا جالا ہے ہمارے ہاں، جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں لیکن درندے اسے پھاڑ کے جناب گزر جاتے ہیں۔ دنیا کے عدلیہ کے نظام میں دنیا کے 128 ممالک میں سے 120ویں نمبر پہ ہم ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ہاں آپ اس چیز کو، صورتحال کو ذرا سامنے رکھیں کہ جو کچھ ہوا وہاں پہ، اس کیس کو سننے کے بعد جس طرح اس کو ڈیلے کیا گیا، پھر وقت کے تحت جناب ایک باقاعدہ ماحول بنایا گیا، اس کے بعد اسحاق ڈار کو لایا گیا، لوگوں کا رسپانس دیکھا گیا، اداروں کا رسپانس دیکھا گیا کہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد جس طرح ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ریلیف اور جس طرح ماشاءاللہ عدالتی سسٹم چل رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان جس سطح پہ تھا اور آج
35-40 साल 75 साल तो हमें हो गए हैं, 35 साल से ये लोग इक़्तिदार पे हुकूमत करते आ रहे हैं मुख्तलिफ। तो ये इनके सामने जो जिस हाल में आज पाकिस्तान पहुंचा कि 5 नस्लें भी हमारी मकरूज़ हो गई, तो मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है कि आसमान से कोई माज़अल्लाह फरिश्ते ही उतरे थे जिन्होंने ये सारी चोरी की, करप्शन की और मुल्क को इस सतह पे पहुंचाया। हमारा अदालती सिस्टम जिस तरह उनको बाकायदा सर्टिफिकेट दे के बरी कर रहा है और जिस तरह बाकायदा एक लॉन्ड्री से साफ़ और शफाफ करके निकाला जा रहा है, दुनिया की तारीख में ऐसा आपको कोई भी अदालती सिस्टम नहीं मिलेगा जहाँ से इतना बेहतरीन और साफ़ और शफाफ जो है वो आपको इंसाफ मिले। अब हुआ क्या, वहाँ जो अदालती कार्रवाई थी, मैं उस पर बात नहीं करूँगा जो हुआ वहाँ पे, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जिनके मुतज़ाद बयानात आपने सुने, उसके बाद वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये मेरी सिस्टर का था और वो इसको हैंडल कर रही थी, और वहाँ पे अदालत के अंदर ये बात नैब को कही जा रही है अदालत की तरफ से कि आप प्रूफ करें कि ये चोरी इन्होंने की या इनके नाम पे ये इनकी चीज़ मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा, ये ऐसे ही है पाकिस्तान में जैसे आपके पास एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल के लिए आपके पास कागजात होते हैं, आपको वक्तन फ़वक्तन रस्तों पे पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, रोक लेते हैं और आपसे पूछते हैं, किस लिए पूछते हैं कि कहीं ये चोरी का मोटरसाइकिल तो नहीं है, इसका अपना है कि नहीं। तो आपसे प्रूफ मांगते हैं और उसको देखते हैं और उसके बाद वो आपको जाने देते हैं, अगर नहीं तो आपका चालान करते हैं, वरना आपकी बाइक को पकड़ के अंदर कर देते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की एक अदालत और उसके अंदर एक इदारा खड़ा है और उससे पूछा जाए, बाकायदा इस पे इतनी हायरिंग्स हुई और सारा कुछ सिस्टम और सारे प्रूफ करने के बाद, बाकायदा नाअहल करने के बाद, उनको इश्तिहारी करार देने के बाद, आप बाकायदा उनको वहाँ से उस नैब से पूछा जा रहा है कि आप साबित करें कि ये चीज़ें इनकी हैं और ये इन्होंने चोरी की या इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह का हमारा सिस्टम रह गया। मतलब जो 35-40 साल इस मुल्क के इक़्तिदार पे हुकूमत करते रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो साफ शफाफ हैं बेचारे, वो तो आप मज़लूम हैं, उन पे तो उल्टा जुल्म हुआ। ये अवाम ही है जिसने सब कुछ चुराया या आसमान से फरिश्ते उतरे। एक अजीब सूरत हाल है और जिस तरह से इस मुल्क के निज़ाम को हम जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इंसाफ का निज़ाम होता है, मुआशरे जुल्म से तो चल सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी से नहीं चल सकते। आज हम उसी तरफ चल पड़े हैं, तो हमें सोचना होगा और ख़ास तौर पे इदारों को सोचना होगा, वरना याद रखिएगा जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, कल को यही अवाम होगी। ये भी कुदरत का निज़ाम है। आप जितना मर्ज़ी इसको कहें, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, हम अपने तरह से मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर रहे हैं, बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन ज़रा अवाम में जाके देखिए। और दूसरी बात ये कि ये जो आप निज़ाम लेके चल रहे हैं, एक कुदरत का निज़ाम भी चल रहा है, वो भी एक वक्त देखता है, जब हद क्रॉस होती है तो वो भी इंसान की रस्सी को खींचता है, और जब वो खींचता है तो इंसान को इबरतनाक, दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान बना देता है। तो पाकिस्तान का आज जो हाल हो रहा है और जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये नाकाबिले बयान और नाकाबिले यकीन है, इंसान दंग है। और मैं भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ आप तक, ये वीडियो के ज़रिए आप तक बात करता हूँ, तो ये आगाही है, शऊर व आगाही है एक तरह से कि जो हालात पाकिस्तान के, हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन ये इदारों को सोचना होगा, ये इस मुल्क के लोगों को सोचना होगा कि ये किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का है। जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, जो वो चाहते हैं, अवाम की राय की कोई वक़्त नहीं। आप वोट दें जिसको मर्ज़ी, ला पे इक़्तिदार में बिठा दें, वो जिसको चाहें उठा के बाहर फेंक दें, जिसको चाहें मर्ज़ी लेके आ जाए। तो ये कैसा निज़ाम है। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ निज़ाम की। आवाम को सोचना होगा जिसके ज़रिए ये लोग आते हैं, ये निज़ाम को चेंज क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अशराफिया है, ये इसके मुहाफ़िज़ हैं। इन लोगों ने ये सिस्टम इतना मजबूत बना लिया। अंदाज़ा लगाएं जो वो नैब के लोग थे और बाकी लोग। ज़रा इस वीडियो को भी आप ज़रा सुने ना। इस वीडियो बंदी नहीं है, कुछ ना कुछ कागज़ तो दाखिल करना है ना इन्होंने। मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट है, और वो ये कि ये ड्राई क्लीनिंग की दुकान है। पाकिस्तान में बहुत सारी दुकानें हैं और ये ड्राई क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल तमाम धब्बे दाग धुल के साफ शफाफ हो के निकलेंगे, और ऐसे निकलेंगे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। बड़ा भयानक मंजर है मुस्तकबिल का कि इस मुल्क में आइंदा करप्शन के खिलाफ कोई आवाज भी बुलंद नहीं कर सकता। अब जो ओवरऑल सारा पनामा लीक्स का मैटर चल रहा है, मेरे नजदीक इसमें भी इनको क्लीन चिट मिलेगी। इसमें भी आप कहते हैं कि क्लीन चिट मिलेगी। इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, ये सारे इदारे सफाई दे देंगे नवाज शरीफ को, बिल्कुल सफाई देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब,
इन इदारों में इनके मुलाजिम बैठे हैं, इन्होंने तकरीरें कर रखी हैं। तो बदकिस्मती ये है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने एडवांस। यानी कि ये लोग जो नीचे से ऊपर चपड़ासी से लेके 35 साल ये हुकूमत में रहे, तो हर जगह अपना बंदा बिठाया हुआ है, हर इदारे में अपना बंदा रखवाया हुआ है। क्यों? उन्हीं के ज़रिए काम चलाना है, उन्हीं के ज़रिए ये सिस्टम चल रहा है। एक कंपनी है, उसमें आप मैनेजर लग जाते हैं, हर तरह के लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने जाने वालों को हायरिंग करते हैं, उस तरह वो आपका सिस्टम हो जाता है। आपको सपोर्ट करने वाले लोग आ जाते हैं जो आपको खबरें देते हैं, आपके काम को चलाते हैं। आप चाहे 2 नंबरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। इस सिस्टम में 35 साल यही अशराफिया रही, तो इन लोगों ने हर जगह पे अपने लोग बिठाए हुए हैं, जो इदारे क्या हर चीज़ इन्होंने मफलूज करके रख दी है। कोई चीज़ इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आज हम हर चीज़ को उस तरफ ले के जा रहे हैं कि आइन, कानून, इदारे, हर चीज़ इनके मातहत हो जाए। और ये सबसे बड़ी अशराफिया, ये सबसे बड़े लोग हैं, सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। अवाम को सोचना होगा अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। आज 2 वक्त की रोटी और महंगाई के लिए आप तरस रहे हैं, महंगाई पे आप तड़पते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जब आपको तकलीफ़ होती तब आपको तकलीफ़ महसूस होती है। लेकिन ये जो मुल्क के साथ होने जा रहा है, इसका अजाला भी आपने ही भुगतना है, किसी और ने आके नहीं भुगतना। आपकी नस्लें इसी मुल्क में रहेंगी। ये लोग तो बाहर, इनकी जायदादें, वतन बाहर कहाँ पासपोर्ट बनाए हुए हैं, तो ये लोग तो वहाँ चले जाएंगे। हमने गुजारनी है ज़िंदगी, हमारी नस्लों ने गुजारनी है, तो हमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा, वरना हम पछताएंगे और हम तरसेंगे, हम रोएंगे। ये मुल्क और हम अवाम, ये हमारा है और ये हमने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।